ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل قادری. ناظرین، آج ملک بھر میں نیشنل اسٹیٹسٹکس ڈے منایا جا رہا ہے اور آج کے پروگرام کے لیے ہم نے اسی موضوع کا جو ہے انتخاب کیا ہوا ہے. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے جی اے قریشی صاحب کو، جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس اینڈ اسٹیٹسٹکس جموں کشمیر کے. اور ہمارے شو میں ہم نے دعوت دی ہے الطاف حسین صاحب کو، جو کہ ڈی ڈی جی ہیں نیشنل اسٹیٹسٹکس آفس گورنمنٹ آف انڈیا کے. دونوں مہمانوں کا ہمارے شو میں بہت بہت استقبال ہے. قریشی صاحب، یہ جو نیشنل اسٹیٹسٹکس ڈے منایا جاتا ہے، اس دن کو منانے کے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہے، کیوں مناتے ہیں ہم یہ دن پورے ملک میں آج کے دن؟ جہاں تک اسٹیٹسٹکس ڈے سیلیبریشن کا تعلق ہے، جی، اصل میں یہ 3 سطح پر منایا جاتا ہے. ایک انٹرنیشنل لیول پر، جی، اور دوسرا جو کنٹری لیول پر ہوتے ہیں، مختلف کنٹریز بھی اپنے انہوں نے فکس کیے ہیں ڈیٹس منانے کے لیے. جی، اور پھر تیسری جو سطح ہے وہ انسٹیٹیوشن لیول، جہاں جہاں بھی اسٹیٹسٹکس پڑھائے جاتے ہیں، جو ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹس آف اسٹیٹسٹکس ہیں، انہوں نے بھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ادارہ جاتی لیول پر کوئی ڈیٹس تاریخ مقرر کیے ہیں جہاں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک آج کے 14th نیشنل اسٹیٹسٹکس ڈے سیلیبریشن کا تعلق ہے، جی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی شروعات 2007 میں ہوئی تھی، جی، جبکہ یہاں کی گورنمنٹ نے، سینٹرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ اسٹیٹسٹکس کا بہت اہم رول رہا ہے نیشنل بلڈنگ میں، پلان فارمولیشن میں، جی، ڈیولپمنٹ اینڈ گورننس میں. جی، اور اس کا سب سے کریڈٹ بھی جاتا ہے یہاں کا جو نیشنل اسٹیٹس کا سسٹم، اس کو فاؤنڈ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اس کی بنیاد جس نے ڈالی ہے وہ پروفیسر پی سی مہرنویس تھے. جی، اسی نے ہمارے ملک میں ایک نیشنل اسٹیٹس کا سسٹم اس کو فاؤنڈ کیا، نیشنل لیول پر، اسٹیٹ لیول پر. جی، اور اس کی جو خدمات تھیں اس کو سراہتے ہوئے اور اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے گورنمنٹ نے 2007 میں فیصلہ لے لیا جی، کہ ملکی سطح پر اور ریاستی یا یو ٹی لیول پر ہر جگہ آفیشلی اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، جی، تاکہ جو اس کی خدمات رہی ہیں ملک کے تئیں اور نیشنل بلڈنگ کے تئیں، یا پلان فارمولیشن میں، ڈیولپمنٹ پلاننگ میں اور گورننس کے حوالے سے جو پروفیسر مہرنویس کی بنیادی خدمات رہی ہیں، جی، اور جو نیشنل اسٹیٹسٹکس کا کنٹریبیوشن ہے نیشنل بلڈنگ میں، تاکہ اس کو یہاں اس کی اویئرنیس کریٹ کیے جائے ملک میں، جوانوں میں، ایجوکیٹڈ یوتھ میں، تاکہ اسٹیٹسٹکس کا جو ہے اس کی امپورٹنس بڑھتی رہے اور یہ آرگنائزیشن ملک اور قوم کی ترقی کے لیے آگے بھی خدمت کرتی رہے. جی، جہاں تک ہماری اسٹیٹ کا تعلق ہے، ریاست جموں کشمیر کا، یو ٹی کا، جب پہلی دفعہ اس کو 2007 میں بنایا گیا پروفیسر پی سی مہرنویس کی یاد میں، جی، تو اس وقت بھی ہم دونوں یہاں مل کے، جی، اس وقت بھی یہ تھی اور میں تھی، جی، بلکہ پوری ملک میں صرف یہ ہماری جموں کشمیر تھی جس کو ہم نے جوائنٹلی اس وقت منایا، اور اس طریقے سے منایا جی، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے کہ جو اس وقت کے چیف اسٹیٹسٹین ہمارے تھے جی، پروفیسر سین صاحب، جی، اس نے ہمارے چیف سیکرٹری کو اپریشیشن دے دی اوکے، کہ جس طرح آپ کی اسٹیٹ نے اس کو آرگنائز کیا ہے ود اے کوآرڈینیشن آف دی یونیورسٹی جی، اسٹوڈنٹس، دن بھر کی فنکشن تھی، جی، تو اس کو انہوں نے اس کو ایکنالج کیا. جی. تب سے ہم ہر سال اس کو مناتے رہے. آج ہی کے دن یہ منایا جاتا ہے. آج ہی کے دن ہر الطاف سال صاحب، آپ نیشنل اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن یا نیشنل اسٹیٹسٹکس آفس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ڈی ڈی جی ہیں وہاں پہ. جب کنٹری لیول پہ بات کریں یا پھر ہم لوکل کانٹیکسٹ میں بات کریں، جموں کشمیر یو ٹی کے بارے میں جب بات کریں، اس آرگنائزیشن کا یا اس آفس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ نہیں، وہ جو مینڈیٹ آپ بول رہے ہیں، مینڈیٹ کا ایکچولی اسٹیٹکس ہے. جی، جی، جو اس سال کا جو تھیم ہے وہ سسٹین ڈیولپمنٹ گول کے ریلیٹڈ ہے. جی، اس میں 17 گولز ہیں. جی، جو اس سال کا جو مطلب پرٹیکولر 2 ہی گول انہوں نے سلیکٹ کیے. جی، ایک تھا سسٹین ڈیولپمنٹ گول 3، جی، جو کوالٹی، گڈ کوالٹی، گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، جی، اور سسٹین ڈیولپمنٹ گول 5 جی، جینڈر ایکوالٹی. دونوں ایکچولی اسی لیے چوز کیے. اس سال جو آل اوور ورلڈ میں جو کووڈ-19 تھا، جی،
उससे रिलेटेड, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस होगी कि जो हमारी डेवलपमेंट है, वेलबींग है, गुड हेल्थ है, वो उनके साथ, ताकि लोगों में ये जो डेवलपमेंट है वो किस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो उस बढ़ाने के लिए एक स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का इसलिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मॉनिटरिंग एजेंसी है सस्टेन डेवलपमेंट गोल का। हम जो इंडिकेटर सिलेक्ट के इनका डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा कलेक्ट से ये साबित होता है कि मतलब हम कहाँ तक पहुँच गए। मतलब जो ग्लोबल लेवल पर उन्होंने दिया है डेडलाइन 2013, सस्टेनेबल गवर्नमेंट कवर होना चाहिए, इसके मतलब टारगेट फिक्स किए गए। मतलब हम लीजिए जेंडर इक्वलिटी में, जेंडर इक्वलिटी में टारगेट उन्होंने सेक्स रेशो का, मतलब सेक्स रेशो इम्पोर्टेंट ये मतलब एक फीचर है जिसमें अगर मतलब फीमेल पॉपुलेशन वर्सेस मेल पॉपुलेशन, मतलब अगर आज की बात करेंगे एट नेशनल 898, while जो हमारी यूटी है उस वक्त स्टेट थी, स्टेट का फिगर है 906, तो टारगेट होना चाहिए 954। तो जो ये वेरिएशन है, इस वेरिएशन से आप जानते हैं कि जितने भी क्राइम्स हैं वगैरह वो ही मतलब कॉज होती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स या स्कीम्स हैं ताकि इसको पावर लाने के लिए 954 जो डेडलाइन सेक्स रेशो का रखा है, तो उसको बाय 2013 तक हमें कंप्लीट करें। इसी तरह बहुत सारे 169 इंडिकेटर्स उन्होंने जो इनका टारगेट फिक्स किया गया है 2013 तक रखा गया। जी कुरैशी साहब, इस साल का एक थीम जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट है, तो उस पे जरा आप इलैबोरेट कीजिए। मेरे ख्याल में पहले हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। असल में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है पूरी दुनिया में। हर कोई जो मुल्क है इसकी तरफ गामजन है कि हमारा जो मुल्क है या हमारा जो खिता है उसको पायदार तरक्की। दरअसल इससे पहले यूनाइटेड नेशंस लेवल पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन उसमें जो हमने अहदाफ रखे थे, जो जितने भी गरीब ममालिक हैं, पसमानदा ममालिक हैं, वो इस काबिल नहीं रहे कि वो इसको इन अहदाफ को छू सकें। अल्टीमेटली 2012 में ये यूनाइटेड नेशंस लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस हो गई जून में। वहाँ ये फैसला हो गया कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होंगे जो 2030 तक, जैसे हाजी साहब ने बताया। और इसकी जो मुद्दत है इसको पाने के लिए, इन अहदाफ को पाने के लिए, वो 2015 से 2030 तक है, यानी 15 साल का एक किस्म के विजनरी टारगेट्स। यानी कि यूनाइटेड नेशन जो जितनी भी कौमें हैं, जितने भी ममालिक हैं, उन्होंने अपने लिए एस्पायरेशंस गोल्स मुकर्रर कर दिए हैं कि हम अपनी इन खतूत पर तरक्की को, अपनी मुल्कों के या खितों की तरक्की को इस तरह मजबूत करेंगे कि हमारी तरक्की पायदार बने, इसमें जिनसी मसावत हो, मुतवाजन तरक्की हो। और खासकर ये दो चीजें बहुत अहम थी जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल गोल्स आ गए। एक जो आपने कहा जेंडर इक्वलिटी, तरक्की की होती रही, लेकिन देखिए जिंदगी के दो पहिए हैं, मर्द और खवातीन, ये दोनों यकसान तरक्की करनी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मर्द आगे जा रहे हैं, जो औरत मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। जा रहे हैं, जो औरतें हैं वो पीछे हैं, हालांकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल लाइफ में, कम्युनिटी लाइफ में एंड आल्सो कलेक्टिव लाइफ में। तो एक ये चीज थी। दूसरी ये चीज थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट जरूर कर लो, आगे जाओ, जो हमारी जरूरियात है उनको पूरा करो, बट वी मस्ट आल्सो हैव टू प्रोवाइड समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो हमारी रिसोर्सेस हैं, इस पर सिर्फ आपको और मेरा हक ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, हमें नई जनरेशन, बिकॉज देयर इज कंटिन्यूटी इन द ह्यूमन रेस, जो आगे आने वाली हैं पूर्ण नस्लें, हमें उनका भी ख्याल रखना है। इतना ही खर्च करने, इस तरीके से इस्तेमाल करें
कि हमारी ज़रूरियात जो जायज़ ज़रूरियात हैं जी। मुल्की या इनफरादी सतह पर या हम बैनुल अक़वामी सतह पर, जी। लेकिन जो आगे नस्लें हैं उनके लिए हम जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको बचा के रख सकें। अब जो जेंडर इक्वलिटी का आपने जी। एक जी। टारगेट तो यही है। जी। अगर आप जेंडर इक्वलिटी देखेंगे इसमें 2-3 अहम पहलू। जी। इक्वलिटी में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी, इस तरीके से हम देखते हैं अगर ग्लोबली और नेशनल लेवल पर या इस पे मैं वापस आऊंगा आपके ठीक। इसके अल्ताफ साहब, आप एक मॉनिटरिंग एजेंसी हो, आप डिफरेंट जो इंडिकेटर्स है, जैसे आपने बोला कि डिफरेंट इंडिकेटर्स है, डिफरेंट पैरामीटर्स है डिफरेंट सेक्टर्स में, जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो, आपको आपकी ऑब्जर्वेशन में कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां पे हमने जो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम चेरिश कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स में हमने एक काबिल सराहना काम किया है, हमने कुछ हद तक हासिल किया हुआ है? वैसे मेरे पास पूरा मतलब जो रिपोर्ट ओवरऑल हम देख लेंगे, जो मतलब इकोनॉमिक एनवायरमेंटल रिलेटेड जो जी। ये इंडिकेटर्स है जी। उसमें हम थोड़ा आगे हैं। जी। बाकी जितने सोशल एंड इकोनॉमिकल है जी। वो उसमें हम पीछे हैं। ओके। मतलब हम हेल्थ सेक्टर को लेंगे हम पीछे हैं, या हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे इंडिकेटर, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट्स जी। या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, उसको भी हम मतलब उस पर नहीं ले पा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन का, ओके। इम्यूनाइजेशन मतलब ठीक है, पल्स पोलियो तो 100% है, मगर बाकी जो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम वो भी मतलब एजुकेशन कर लीजिए, एजुकेशन भी हम मतलब पीछे ही, मतलब इतना अच्छी रिसर्च भी नहीं हो रही है यहाँ पर। Okay. मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली हमें ही इसमें घुस जाना है ताकि हमें आगे अच्छी मतलब जो डेवलपमेंट जो सस्टेन करने के लिए फ्यूचर इन ट्रांसपोर्ट या स्टेट या यूटी बोल दीजिए, उसके लिए हमें ही काम करना है। Okay. तो जब भी हम काम करेंगे तभी पॉसिबल है, तब हम आगे जाएंगे। Okay. तो ओवरऑल हमें इंडेक्स को देखेंगे कि हमें बहुत कुछ करना है, बहुत काम करना है। ओके। कुरैशी साहब, जेंडर इक्वालिटी की आप बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ग्लोबली भी और यहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। हाँ जी। ग्लोबली में आपसे भी कर रहा था अरब और इंडियन कंटेक्स्ट में, या जे के स्टेट के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, अगर हम देखेंगे इसके 2-3 डायमेंशंस हैं जेंडर इक्वालिटी। एक इकोनॉमिक डायमेंशन है और दूसरा पॉलिटिकल डायमेंशन है। इम्पोर्टेंट अगर हम इन दो पर गौर करेंगे, पॉलिटिकल अगर डायमेंशन आप इसका देखेंगे तो हमें ये देखना है कि विमेन की कितनी पार्टिसिपेशन है इन द पार्लियामेंट्स, इन द असेंबलीज, इन द पंचायत। ओके। अगर जब हम ग्लोबली देखते तो विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है इन द रिप्रेजेंटेटिव हाउस, बी द पार्लियामेंट, बी द सब नेशनल असेंबलीज, ओके। वो बहुत ही कम है। वो 26-27-28% से ज़्यादा नहीं है, कहीं 30-40% भी। जी। ये ग्लोबली है। और ऐसी ही सिचुएशन हमारे इंडिया में भी, पार्लियामेंट में इतनी कोई ज़्यादा इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं, इट्स ओनली 26%। जी। ऐसा ही हमारी स्टेट असेंबली में भी, यानी जो बहुत बड़े हमारे आईन साज इदारे हैं वहाँ विमेन की पार्टिसिपेशन कम है। इसके बरक्स जब हम देखते हैं जो पंचायतें बन गई या जो लोकल बॉडीज बन गई, जी। जो सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें इनकी अच्छी नुमाइंदगी, जी। क्योंकि बिकॉज ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मैंडेटरी बन गया कि पंचायतें हों या बल्दियात, जी। विमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और अब जो लेटेस्ट एदाद शुमार आई है वो इनकरेज है। जी। इसमें सिर्फ 33% ही नहीं है, बल्कि कहीं कहीं अब 50 से भी ज्यादा कुछ स्टेट्स में हो गए हैं, विमेन की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो गई है जन में। सो दैट इज इनकरेज। लेकिन जो असली इख्तियार जो इदारे हैं, कानून साज इदारे हैं, पार्लियामेंट और असेंबली में है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। और जहां तक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की ताल्लुक है, एक तो होता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जो यहाँ है, इंटरप्राइजेज है या इंडस्ट्री है या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसमें जो विमेन की पार्टिसिपेशन है, जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि रिजर्वेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट एश्योर्स इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन ऑल सेक्टर्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैन एंड वुमेन इन ऑल एक्टिविटीज। लेकिन होता जो प्रैक्टिकली अभी तक हमने भी 70 साल का वर्षा जो तरक्की का है वो हमने तय कर लिया है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि विमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है इकोनॉमिक सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट सेक्टर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वहाँ अच्छी रेगुलर
तनख्वाहें होती हैं, इसमें हमारी वीमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 30% से कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत जी है। और दूसरा जो इस वक्त इम्पोर्टेंट है वो ये जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जी। मीन्स इनोवेशन, जी। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप, Entrepreneurship, क्योंकि इसी में जो यूथ इंगेजमेंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो इसमें भी हमारी वीमेन की पार्टिसिपेशन अभी ज्यादा नहीं है, गो कि बढ़ाने इसकी की जरूरत है। जी। परसेंटेज बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। दिस हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड आल्सो द यूटी लेवल गवर्नमेंट, जी। सो दैट जी जो हमारी खवातीन जी। हैं वो अपना उनको भरपूर किरदार जी, जी। अदा करें ओके। मुल्क के तामीर करने जी। में, या अपने जो रियासत है या जो अपना जी। खिता है जी उसको तरक्की देने के लिए, उसको बनाने के लिए ओके। अपना भरपूर किरदार अदा जी करें। अल्ताफ साहब, कोविड की वजह से ग्लोबल एक सिनेरियो में अपसाइड डाउन चेंजेस आ गए। जब हम सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर को जब हम देखते हैं लोकल लेवल पे, मैं कंट्री के लेवल पे बात नहीं करूंगा, जम्मू कश्मीर के लेवल पे बात करूंगा, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जब हम सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं तो कहाँ देखते हैं अब हमारे जम्मू कश्मीर को, और क्या कुछ करने की जरूरत है? वैसे जो कोविड के भी जो फैक्ट में फिगर्स जी। हैं उससे ये अंदाज़ा ये होता है कि मतलब इसका जो स्केल अभी मतलब कंट्रोल नहीं है। जी तो स्केल कंट्रोल जब भी होगा तभी हमें बताएंगे कि हमारी जो सस्टेनेबल जो रिलेटेड है इंडिकेटर्स जी वो कहाँ तक है। जी मगर अभी जो रिसेंटली वर्चुअल एक कॉन्फ्रेंस हो गई जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन पर्टिकुलर वुमेन यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स विंग जो थी, जी तो उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि जो वुमेन्स है वुमेन का जो हेल्थ है उसको मतलब केयर करना है, जी क्योंकि उसी का मतलब रोल इन फ्यूचर में है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ना होना चाहिए। तो उसके लिए काम हो रहा है। जी तो ये चीज़ें मतलब अभी मतलब ये नहीं बता सकते हैं कि जैसे यहाँ की स्थिति है, यहाँ मतलब कुछ दिनों के बाद देखेंगे वो उससे बदतर हो गई या उससे ये ठीक ही होगा। जी तो अभी हम ये नहीं कह सकेंगे कि मतलब सस्टेनेबल का कितना रोल है इसमें। ओके मतलब ओवरऑल देख लेंगे तो सस्टेनेबल का बहुत ही रोल इसमें, ओके क्योंकि गुड क्वालिटी जो ये क्वालिटी हेल्थ जो है वो उससे ओके। कुरैशी साहब, यूएन की वजह से टारगेट सेट किए गए थे, जैसे कि आपने भी बोला कि डिफरेंट कंट्रीज के लिए अलग अलग टारगेट सेट किए गए थे। जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारे लिए भी कुछ टारगेट सेट किए गए थे। आपको क्या लगता है कहाँ पहुंचे हम उन टारगेट्स को अचीव करने में? और जब हम फिर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पहले तो कंट्री लेवल पे और फिर जब हम अपनी यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। हेल्थ के हवाले से मैं एक दो बातें अर्ज करूंगा जी कि जब हम ग्लोबली देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, तो हमें दो तीन चीज़ें बहुत कंसर्निंग हैं ग्लोबली एंड आल्सो देन इन द इंडियन कंटेक्स्ट। एक यह है कि जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं जी उनकी जो मोर्टेलिटी है वो अब भी ज़्यादा है। हालांकि इसमें गिरावट आई है जी लेकिन अब भी ये ज़्यादा है। अभी भी यानी alarming जो अभी हमारे छोटे बच्चे हैं जी छोटे बच्चे हैं अभी वो 5 साल की बरसी उनको बनानी होती है तो मर जाते हैं। जी 39% से ज़्यादा ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। जी दिस आल्सो लेटर ऑफ कंसर्न इन इंडिया एंड आल्सो ग्लोबल। एक में दूसरी है जी जी मैं आपको लूंगा इस पे। जी दूसरा है जी जो ये चीज़ है जी 6 मिलियन चिल्ड्रन जी globally die every day before reaching their 5th anniversary. 5th बर्थडे जी So यानी जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी है जी वो बहुत ज़्यादा है। ये ग्लोबली भी है, हमारी कंट्री में भी है। दिस हैज टू बी एड्रेस्ड। ओके एक कंसर्न ये है। दूसरा जो है एड्स कंट्रोल, जी कंटेजियस डिजीज, ये पर्टिकुलरली ज़्यादा है अफ्रीका में, जी सब ज़रा अफ्रीका में। दिस ग्लोबल कंटेक्स्ट और हमारी कंट्री में भी इसका असर है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन दिस टू। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। has to be dealt with severely गवर्नमेंट इंटरवेंशन में। ओके तीसरी चीज़ जो आपको बता, आपने चूंकि जम्मू कश्मीर की बात भी कही, जी
हालांकि कुछ स्कीम्स नेशनल लेवल पर हेल्थ केयर को गियर अप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट के बारे में। मसलन हमारा एक है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसको पोषण किया, पहले आईसीडीएस होता है जिनको आंगनबाड़ी चलाते हैं। हालांकि इसकी बड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया है जिसको लड़कियां ही चलाती हैं, फीमेल ही चलते हैं, इसमें आंगनबाड़ी वर्कर, सो वुमेन एम्पावरमेंट इज देयर। और फिर इसका जो मेन मकसद है न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन को चेक करना। मल न्यूट्रिशन जब चेक हो जाएगा, अभी जब मैं आपको अभी बतला रहा था कि 6 मिलियन चाइल्ड आर डाइंग एवरी डे, वो कम हो सकता है जब न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाएगी। और जहां तक हम देखेंगे क्या हमारे पास इसका पूरा स्ट्रक्चर है, हेल्थ इंस्ट्रक्चर है जी। जब हम नेशनल लेवल पर देखते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, इट इज द प्राइवेट सेक्टर इज डोमिनेंट। सबसे ज्यादा अहम रोल हेल्थ केयर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर से ऊपर तक टेरिटरी तक, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, वो प्राइवेट सेक्टर में आ गई, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर। यू विल बी फाइंडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल एवरीवेयर। यानी यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल नहीं बने बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ कंफ्लिक्ट, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर यहाँ उभरा नहीं। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में जो हेल्थ केयर होती है ये सस्ती होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मयारी होती है। लिहाजा जरूरी है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि जो मयारी सेहत की सहूलियात वो यहाँ के आवाम को दस्तियाब हो। इसी तरीके से मैं वापस आऊंगा आपके पास। अल्ताफ साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते थे? इसमें एरिया जो डाटा रिलीज किया गया मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में आप कुछ? जी। तो इसके बाद हमारी जो मिनिस्टर ने डाटा रिलीज किया है, तो उसके हिसाब से जो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 130 है ओवरऑल इंडिया में। तो इसका टारगेट जो ग्लोबल टारगेट रखा है 17 तक इसको लाना है। तो हमारी स्टेट में भी ऐसी सिचुएशन है, 135 के आसपास है। तो इसी तरह जो चिल्ड्रन एज अंडर 5 इयर्स का है, जो टारगेट रखा गया है ग्लोबल 11 तक उसको लाना है। तो इस वक्त प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो 50 है ऑल इंडिया लेवल पर। और हमारे स्टेट में इसका 60 मतलब पर ईयर पर लाख जो ये डेथ्स होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है लेबर फोर्स जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, उसका टारगेट रखा है कि 550 मतलब जो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह पर लाख पॉपुलेशन। तो जो देखा गया है ऑल इंडिया लेवल पर ये 221। तो हमारे स्टेट में इसका अवेलेबल नहीं है। और ये जो मैल न्यूट्रिशन है इसके क्या स्टेटस है? malnutrition जो इम्यूनाइजेशन में आ गया वो ओवरऑल 62% है इंडिया में इस वक्त है। तो हमारे स्टेट में है 72। तो इसको मतलब वो थोड़ा ठीक है, तो इसको टारगेट लाना है 100% तक लेना। तो उसमें थोड़ा ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो डेटाबेस है अल्टीमेटली जो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इनका तो अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो फंक्शन तो यही है ना कि डेटाबेस प्रोवाइड, जब भी पॉलिसी प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी सेक्टर के लिए, तो ये जो डेटाबेस का होना है, जो कहा जा रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास बहुत ही अच्छा डेटाबेस रहता है। तो डेटाबेस का क्या इंपॉर्टेंस है जब पॉलिसी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन की बात करते हैं किसी भी सेक्टर में? देखिए, साउंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन या गवर्नेंस जो हो या जो भी डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोग्राम्स हैं जी, ये तभी एक्यूरेट बन जाते हैं और उनकी इफादियत बढ़ जाती है जब ये जुडिशियसली बनाई गई हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स या डेटाबेस का स्ट्रांग होना और रिलायबल होना, काबिल एतमाद होना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स अगर टन्स में भी हो, लेकिन अगर जो लोग हैं पीपल अगर इसको वो ट्रस्ट नहीं करते तो इसकी किस काम आए? तो सबसे अहम चीज जो है, और इस थीम के हवाले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से भी ये है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या जो भी स्कीम्स हैं ये तब ही समरावर साबित होंगी, नतीजे के साबित होंगी जब
ये जुडिशली बने हों और फिर उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छी तरीके से हो। ओके इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा एदाद शुमार का निज़ाम है ओके कौमी सतह से लेकर डिस्ट्रिक्ट सतह पर ओके इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अल्ताफ साहब क्या मैसेज है आपका? मैसेज अगर आप फोकस करें रूरल इकोनॉमी को लेकर उस हिसाब से आप मैसेज मैं एक मैसेज मोस्टली हम मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। नहीं वो ठीक है एक्चुअली वो यही मैसेज दे रहा हूँ कि जो मतलब एजेंसीज है स्टैटिस्टिक्स ये कलेक्शन जो एजेंसीज है पर्टिकुलर जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है जी हम तो ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं डोर टू डोर हाउस होल्ड ओके तो जितना मुमकिन हो जाएगा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक से रूरल सेक्टर पर्टिकुलर रूरल सेक्टर में फिर भी अच्छा डाटा मिलता है जी। मगर क्वालिटी इश्यूज है रिस्पॉन्स ठीक है जी अर्बन सेक्टर में क्वालिटी बहुत जी। रिस्पॉन्स कम मिलता है मतलब क्वालिटी भी मतलब प्रॉब्लम है। अच्छा अवेयरनेस फैक्टर जो है उसका कितना रोल है? अवेयरनेस नहीं है ओवरऑल नहीं पता है लोगों को पता नहीं है कि मतलब तो इसकी आपके पास कोई अफादियत प्रोविजन नहीं है इस तरह का कि अवेयरनेस फैलाई जाए? अवेयरनेस तो है हमारे पास प्रोविजन है क्यों नहीं है मतलब गवर्नमेंट अगर मतलब ये सोचे कि घर दो मतलब हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन है जी वहां तक ये जाना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है कितना है जी कहाँ ये यूज होता है। तो ये मेरे मैसेज कि मतलब डाटा कलेक्शन के लिए सही जानकारी मिलना चाहिए ओके ओके चाहे से रूरल सेक्टर कुरैशी साहब मैं कुरैशी सिर्फ साहब इतना आप भी बिल्कुल मैं कंक्लूडिंग सिर्फ इतना ये कहूँगा कि इन्होंने जो कहा जी स्टैटिस्टिक्स फेमिलराइजेशन की बहुत जरूरत है। जी दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए आज का दिन statistics मनाने को। का मकसद मुझे लगता है आज का मकसद का यही है कि गवर्नमेंट शुड गिव टॉप मोस्ट कंसिडरेशन एंड अटेंशन ओके टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ओके प्रेजेंटली जो मेरा अपने असिस्टेंट है जी स्टैटिस्टिक्स इज ए कैजुअलिटी विद द स्टेट गवर्नमेंट ओके विद यूनिट लेवल गवर्नमेंट वो ज्यादा अपना टाइम देते हैं प्लान फार्मुलेशन में दूसरी इंतजामी अमूर हालांकि ये बेस है ओके गवर्नेंस का और डेवलपमेंट बढ़ाने का इसको स्ट्रेंथ करने की जरूरत ओके कुरैशी साहब और अल्ताफ साहब आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत नाज़रीन शुक्रिया क्योंकि इस प्रोग्राम का एक वक्त होता फिक्स होता है और वो वक्त खत्म हो गया इसलिए मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे शो में। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया आप हमारे साथ बने रहे और अब वक्त खत्म हुआ है इजाज़त दीजिए आदाब।